Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel guys and thank you so much for joining me. So let's get started with the Sumbul and Fahman's weekly energy और उसके बाद हम जाएंगे Fahman special birthday, Fahman का birthday special, absolutely pampering Oracle Tarot guidance from our spirit guides. So पहले हम देख लेते हैं कि सुम्बुल की एनर्जी इस वीक, सुम्बुल का ये वीक कैसा जाने वाला है. I will try to I will try as much to keep this thing in English and Hindi. But as I told you in my previous video, guys, you can understand that when I'm in flow, I cannot really remember that much. So let's see. God's Goddess Angels, Archangel Michael, Spirit God, Spirit Guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all the fans, Sumbul, for new beginning, new thought process, new energy, new movement, new thought prospect, new a perspective shift in the thought process. यानी कि एक नया विचार, एक नए ढंग से सोचने का, लाइफ में, एंड एक नया एक्शन भी, एक न्यू स्पिरिचुअल एनर्जी. लेट्स सी. थैंक यू फॉर द गाइडेंस कमिंग फॉर सुम्बुल्स दिस वीक. कैसा रहने वाला है सुम्बुल का ये वीक? ओह वाओ, डिड यू सी दिस अगेन? It's just repeated. Ace of Swords is always about facing the truth, knowing the truth, नए ढंग से चीज़ों को देखना, एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलना, एक जो प्रॉब्लम्स में हम फंसे हुए थे, एक अचानक से उसमें एक आहा मोमेंट मिलना, एक कंफ्यूजन में क्लैरिटी मिलना, ये सारी चीज़ें हमें एस ऑफ सोर्ड लेके आता है. तो इस वीक एक नया ट्रुथ, एक चीज़ों को नई ढंग से देखने का एक नज़रिया, एक ढंग, और एक स्पेशली जो मैंने बोला कि कंफ्यूजन में थे काफ़ी दिन से, इल्यूजन में थे, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, ईगो हम पे हावी हो रहा था, एक ईगो और सोल में फाइट हो रहा था, कशमकश हो रहा था. और ये वाला रीडिंग ये जो गाइडेंस आ रहा है, आई थिंक सुम्बुल के लास्ट वीक के गाइडेंस से, सुम्बुल का लास्ट वीक का गाइडेंस तो मुझे नहीं पता है, बट आई थिंक whether Sumbul will wish Fahman birthday or not, उससे काफ़ी मैच करता हुआ है, क्योंकि 5 of Wands में उसका वो स्पिरिचुअल द्वंद्व दिखाया जा रहा था और वो प्रैक्टिकल होने की कोशिश भी कर रही थी विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. तो वो सारी एनर्जी से ये वाला रीडिंग इस वीक का जो उसका वीकली प्रेडिक्शन है, कहीं ना कहीं मैच खाता हुआ. वो जो 5 of Wands का कार्ड आपने देखा था ना, जहाँ पे वो द्वंद्व चल रहा था, वहाँ पे एक ब्रेक थ्रू आता हुआ, कंफ्यूजन को हटाता हुआ एक स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी. ये जो तलवार है उसके कंफ्यूजन को काट रहा है. सो येस, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग. सुम्बुल्स रीडिंग, सुम्बुल्स एनर्जी, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर हर सुम्बुल्स लास्ट वीक्स एनर्जी, बट आई क्लियरली रिमेंबर हर एनर्जी फॉर whether she will wish Fahman birthday or not, and I feel that this reading is somewhere getting connected with her, that energy, where 5 of Wands in between was telling that she is quite, she is in a tussle, in a tug of war between her own own confusion that is she is feeling in her soul, what to do, what not to do, the chaos, the conflict, the competition that she is facing from two sides of her, where one side is like, the lover side is more like wants to reach out to her lover, her friend, and wants to patch up, whereas the other side wants to be as a Queen of Pentacles in reverse, wants to be more practical, right? So that was the struggle that you saw in Sumbul in that reading, where we had tried to find out whether she is going to wish Fahman her birthday or his birthday or not. So there was a struggle. She is trying to be practical. This was her lover's side. This was her heart, because lovers card is also about heart-based decision making, where you make decision not based on your mind but based on your heart. And when you can win your heart, or when you win anybody's heart, you can also win their mind, right? Because there was actually an operation in Iraq at I think during the Gulf War, where this Iraqi army, they had started this love over mind, some kind of operation where they were trying to win the hearts of the people they had
काइंड ऑफ ऑक्यूपाइड एंड bombarded in the Gulf War. Anyways, तो अगर हम किसी का दिल जीत लेते हैं तो उसका दिमाग को जीतना कोई बहुत ईजी हो जाता है. तो एक वही चीज़ मैं बता रही थी कि यहाँ पे द्वंद था उसका, प्रैक्टिकल रहे या फिर अपने दिल की सुने और फहमान की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाए, और दोस्ती का हाथ नहीं भी बढ़ाए तो एक तरह का जो एक बहुत ही विश करने की चीज़ जो होती है हम उसको वो विश करें. तो वो द्वंद दिख रहा था और उस द्वंद में ही एक क्लैरिटी ये वीक लेके आ रहा है. अब आगे देख लेते हैं कि कौन सा कार्ड हमें आ रहा है. यस, एंड यहाँ पे ये है, ये सुंबुल की इस वीक की एनर्जी है और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड भी आ गया है. तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए सुंबुल की एनर्जी फील्ड में ढके छुपे तौर पे कोई 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी लेके डेफिनेटली यहाँ पे है, जो कि कोशिश करेगा कि कुछ हो ना पाए. डू यू अंडरस्टैंड दिस? हालांकि उसकी इच्छा तो है कि वो सेलिब्रेट करे शायद. यहाँ पे देखो तो बहुत ही सेलिब्रेशन का कार्ड है, एंड सेलिब्रेशन इज, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फहमान्स बर्थडे. तो फहमान के बर्थडे में सेलिब्रेशन चाह रही है कि करे, सोच रही है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, विश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इतने दिन की फ्रेंडशिप है. शी इज ऑल कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स, राइट? शी हैज दिस आइडिया, शी हैज हैड दिस शी इज स्ट्रक विद दिस ट्रुथ कि यस, जो कॉन्फ्लिक्ट था ना उसमें ट्रुथ आ चुका है. ट्रुथ का तलवार आके उसके कॉन्फ्लिक्ट को, उसके ईगो को छांट दिया है. बट नाउ शी इज लाइक कि शुड आई नॉट, शुड आई विश, शुड आई नॉट विश. इतने दिन की दोस्ती है, शुड आई विश, शुड आई नॉट विश, क्या करूं नहीं करूं. अभी भी वो वाला कंफ्यूजन है. बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे करना सही रहेगा नहीं सही रहेगा. सोल लेवल से कंफ्यूजन. अब सोल लेवल पे तो हमें क्लैरिटी मिल गई है. वो लवर्स का कार्ड आके हमें बता रहा है ना कि क्लैरिटी मिल गई है. सोल, वो लवर्स का कार्ड आके उसको क्या क्लैरिटी दे रहा है कि तुम हार्ट बेस्ड डिसीजन लो. टेक अ हार्ट बेस्ड डिसीजन. फ्रॉम द लवर्स कार्ड इज टेलिंग हर टू टेक अ हार्ट बेस्ड डिसीजन. तो उसके सोल में जो कंफ्यूजन चल रहा था विद 5 ऑफ wands, दैट इज शैटर्ड, दैट इज क्लियर्ड. बट नाउ अगेन एट अ प्रैक्टिकल लेवल, should I not? She knows what she should do. The confusion of her soul that she was going through last week is kind of clear. But again, practical level pe, does it make sense? Should I not? Should I go and wish, be part of the celebration? But I think she is holding her back. And she is also not feeling happy not being part of the celebration. Do you see this? This is the celebration that she is thinking about. तो इस वीक सुंबुल का कैसा है ये वीक? एक क्लैरिटी उसके कंफ्यूजन में, बहुत सारी चीज़ें को वो सोच रही है, एनालाइज कर रही है, प्रॉस एंड कॉन्स देख रही है. बर्थडे सेलिब्रेशन का कार्ड हमें बता रहा है कि शायद वो किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है, जहाँ पे किसी चीज़ का किसी बंदे का सेलिब्रेशन है तो सेलिब्रेशन भी हो रहा है. एंड ऑफ कोर्स शी इज़ लाइक कि नॉट participating here, but she is also not very happy. जैसे कि किसी सेलिब्रेशन का वो पार्ट नहीं है और उसे उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है. यहाँ पे हम बैक ऑफ द डेक में हम देख रहे हैं कि जरूर कुछ एक नेगेटिव फोर्सेस ऑपरेट हो रहे हैं उसकी एनर्जी फील्ड में, जो कि शायद उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं मिलने के लिए. ठीक है, तो ये उसकी एनर्जी है इस वीक की. क्या है इस वीक? उससे कुछ क्लैरिटी मिलेगी, कुछ ट्रुथ मिलेगा, अपना जो कंफ्यूजन है उसमें एक रास्ता दिखेगा. प्रॉस एंड कॉन्स, करना चाहिए विश, नहीं करना चाहिए विश. यहाँ पे डेफिनेटली वो किसी को मिस कर रही है, पार्टी को मिस कर रही है शायद. और यहाँ पे एक चीज़ है जो शायद उसको आगे भी बढ़ने से रोक रहे हैं लोग. ठीक है, ये चीज़ है. तो ये वीक इसका इस तरह का जाने वाला है. और लेट्स सी उसके लिए एक इजी ब्रीजी सा मैसेज, गाइडेंस, ब्लेसिंग्स क्या आ रहा है इस वीक. इससे ये भी पता चल जाएगा कि स्पिरिट गाइड्स उसको क्या करने के लिए बोल रहे हैं. Waves of prosperity, new abundance and exciting opportunities wash over you and you are being helped. तो लास्ट वीक आई थिंक उसका कुछ गाइडेंस आया था कि कोई हेल्प होगा, कोई हेल्पफुल पर्सन शायद उसको जो भी चीज़ वो करना चाह रही है, अगर वो किसी को विश भी करना चाह रही है तो कोई एक हेल्पफुल पर्सन आएगा जो उसको उसके लिए चीज़ें हेल्प इजी कर देगा. लास्ट वीक शी हैड गॉट दिस हेल्पफुल पर्सन and it could be that and this week also you are being helped. This is a repeated message continuing from our last reading, which means that definitely there is going to be somebody who will come and who will जैसे कि देखो एक नेगेटिव फोर्स तो डेफिनेटली ऑपरेट हो रहा है उसके एनर्जी फील्ड में, बट डेफिनेटली लुक्स लाइक देयर विल बी सम पॉजिटिव फोर्स ऑल्सो हु
and who will probably force her make the decision, यहाँ पे भी एक break through करके finally go and maybe wish or something like that. But definitely यहाँ पे वो किसी को miss कर रही है, वो celebration का part नहीं है, she is not part of the celebration and she is definitely missing somebody's celebration here. She is thinking whether she should vote, like what is it. मान लो कि वो आज मंडे है, आज उसका बर्थडे है, आज उसको विश नहीं भी करती है, तो भी शी इज लाइक कि व्हाट इज दिस ऑल हैपनिंग, लाइक लाइक क्या सही क्या गलत है. अगर मान लो कि मैं किसी के बातों में आके, जो नेगेटिव लोग शायद उसको बर्थडे विश करने से रोक सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है. शी इज डेफिनेटली फाइटिंग विद दिस. She is more like, what is life if I'm not able to wish also, or not able to do what I want to do? Why so competitive? Why so much of this negativity? क्या है नहीं है, वो सारी चीज़ें उसकी लाइफ में चल रही हैं. तो ये चीज़ें हैं. So this was the guidance, this was the energy of Sumbul, I think, yeah. काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में रहने वाली है इस वीक. शायद किसी चीज़ को मिस भी कर रही है, पार्ट नहीं है. कुछ लोग उसको स्टॉप कर रहे हैं आगे बढ़ के डिसीजन लेने में. कोई हेल्पफुल पर्सन अगेन फिर से उसको आया है कि कोई आके हेल्प करेगा. सो दिस इज हर गाइडेंस फॉर दिस वीक. सो इफ यू लाइक द गाइडेंस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू अगेन विद अनदर गाइडेंस. टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ.